गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड, एक्टिव मेटल्स sodium, potassium, rubidium, aluminum, zinc and so on react with dilute acid to evolve hydrogen gas and corresponding metal salt. Some metals, noble metals, platinum, gold, silver do not react with dilute acid or conc acid. यानी नोबल मेटल्स एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। नोबल मेटल सिर्फ एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करता है। एक्वारेजिया रॉयल वाटर कहते हैं उसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रहता है उसको। उसके बाद सेकंड रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव मेटल सॉल्ट एंड वाटर। थर्ड रिएक्शन, reaction of metal, reaction of acid with metal carbonates, for example sodium carbonate, potassium carbonate, to form metal acid react with metal carbonate to give metal salt, carbon dioxide and water. Again acid react with metal bicarbonate, metal hydrogen carbonate to give metal salt, carbon dioxide and water. And then last reaction, metal acid react with base to give salt and water. Such reaction is known as neutralization. तो आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ ए बेसिस विथ मेटल, विथ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। मेटल, सब मेटल, कुछ मेटल ही रिएक्ट करता है बेस के साथ, कुछ मेटल ही बेस के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। दो मेटल जिंक एंड एल्यूमिनियम। सेकंड है मेटल द बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसेस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसेस। Chemical reactions of bases. Reaction with some metals such as zinc, aluminum. Zinc react with
give sodium zincate and hydrogen gas. अब रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं. जिंक react with sodium hydroxide to give sodium zincate. Sodium zincate. Again, Zn react with KOH, potassium hydroxide. Potassium hydroxide. KOH. K2ZnO2 plus H2. Potassium zincate. Potassium zincate. Another one reaction, aluminum react with NaOH in presence of water also to give sodium meta-aluminate and hydrogen gas. 2Al, 2NaOH, 2,4. Sodium meta-aluminate. Again, aluminum react with potassium hydroxide. Give potassium zincate, aluminate, potassium aluminate. तो हमने देखा पहला रिएक्शन, reactions with some metals such as zinc, aluminium. Zinc react with sodium hydroxide to produce sodium zincate and hydrogen gas. Zinc react with potassium hydroxide to produce potassium zincate and hydrogen gas. Aluminium react with NaOH, sodium meta-aluminate and hydrogen gas. Aluminium react with potassium hydroxide with water, potassium aluminate. यहाँ हमने दो बेस एसिडिक रेडिकल का यूज किया हुआ है. ZnO2 2 minus Al2 minus Al2 minus zincate meta-aluminate. अब सेकेंड रिएक्शन हम लोग देखते हैं. रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. सेकेंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. Non-metallic oxides. Reaction with non-metallic oxides. Non-metallic oxides, दो तीन ऑक्साइड हम सेलेक्ट करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा कार्बोनेट में, सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू सल्फाइड, एंड तीसरा देखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट, sulfur dioxide converted into sulfite, and sulfur trioxide converted into sulfate. Base combined with non-metallic oxides, non-metallic oxides, non-metallic oxide to give salt and water. Therefore, non-metallic oxides are acidic in nature. Therefore, non-metallic oxides are acidic in nature. Non-metallic oxide generally acidic in nature होता है, metallic oxide generally basic in nature. अब रिएक्शन देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड से 2-3 रिएक्शन देखते हैं। NaOH प्लस CO2, NaOH पास, CO2 गैस पास कराते हैं, Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O। फिर उसी तरह से हम ले सकते हैं CaOH होल 2 एक्वस CO2 गैस, CaCO3 सॉलिड प्लस H2O। Another one example with CO2, KOH plus CO2, K2CO3 aqueous plus H2O. Am I clear about carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड से बेस रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। हमने यहाँ लिखा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है पोटासियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा। अब हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फाइट में कैसे कन्वर्ट होता है, इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड NaOH plus sulfur dioxide to produce Na2SO3 plus H2O. Again, MgOH whole 2 sulfur dioxide, MgCO3 aqueous
plus H2O liquid, and again one reaction. आयरन लेड कुछ भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम Al2H3 aqueous plus sulfur dioxide Al2CO3 aqueous plus H2O liquid. देखिए सॉरी SO3 thrice 3 सल्फर 2 एल्युमिनियम 6 हाइड्रोजन. तो एल्युमिनियम convert aluminum hydroxide converted into aluminum sulfide. यहाँ हम देख रहे हैं कि base react with metal non-metal oxide to be corresponding sulfide and water. यहाँ carbonate SO3. तो NaOH react with SO2, Na2SO3 and water. MgOH hold to react with SO2, MgSO3 and water. AlOH hold 3 react with SO2, Al2SO3 hold 3. Neutralization. सॉरी एक और देखते हैं हम लोग. कार्बन टू कार्बोनेट देख, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फेट देख. अब सल्फाइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड टू सल्फेट का कुछ एग्जांपल्स देख. NaOH aqueous plus SO3 gas, Na2SO4 aqueous plus H2O liquid, KOH aqueous plus SO3 K2SO4 aqueous plus H2O liquid, MgOH whole 2 aqueous plus SO3 gas, MgSO4 aqueous plus H2O. तो हम देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड react with sulfur trioxide to form sodium sulfate and water. Potassium hydroxide react with sulfur trioxide to form potassium sulfate and water, and magnesium hydroxide react with sulfur trioxide to produce magnesium sulfate plus water. तो reaction of non-metallic acid. Non-metallic acid are acidic in nature, which react with base to give salt and water. अब हम लोग reaction of base with acid, similar to reaction of acid with base, both are neutralization reaction. Reaction of
bases with acids. Reactions of bases with acids. Base react with acid, the salt and water. बेस फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग देख चुके हैं पहले ही, इसलिए कुछ ही एग्जाम्पल, सर्टेन एग्जाम्पल्स देखते हैं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है हम, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। NaOH aqueous, KOH aqueous, MgOH whole 2 aqueous, CaOH whole 2 aqueous। कुछ सर्टेन एग्जाम्पल हम देखते हैं। HCl aqueous, H2SO4 aqueous, CH HNO3 HNO3 aqueous plus CH3COH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड react with hydrochloric acid, potassium hydroxide react with sulfuric acid, magnesium hydroxide react with nitric acid, calcium hydroxide react with acid to produce salt and water. NaCl and H2O, K2SO4 plus H2O, MgNO3 whole 2 plus H2O, CH3CO whole 2 Ca plus H2O। अब देखिए NaOH react with HCl, NaCl plus H2O, बैलेंस है इक्वेशन। KOH plus react with KH2SO4 to produce K2SO4, K2SO4 plus H2O, MgNO3 whole 2 plus H2O, 2H2, CaOH whole 2, CH3, COO whole 2 Ca plus H2O। तो ये रिएक्शन ऑफ बेसिस with metals, with non-metallic oxide and with acid, ये तीन रिएक्शंस हमने देखा। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एसिडिटी और एंड बेसिसिटी। एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और देख लें, अल्कली। Bases and alkali. Water soluble base are known as alkali. जो वाटर में soluble होगा वैसा बेस को हम कहेंगे अल्कली। All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. Bases and alkalis. Bases and alkalis. Water soluble bases are
water soluble bases are known as alkalis. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. For example, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, NH4OH, CaOH2, ढेर सारा लिस्टिंग है तुम्हारे सामने. वाटर soluble bases are known as alkalis. अब हम देखते हैं पहले basicity of acids. Basicity of acid. Basicity of acid. ये नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन पर डिपेंड करता है. बेसिसिटी ऑफ एसिड based upon number of displaceable hydrogen atom या atoms. दूसरी बात, based upon number of displaceable hydrogen atom, और कहेंगे to give H plus ion in ion और ions भी हो सकता है in its aqueous solution based upon number of displaceable hydrogen atom to give H plus ion in its aqueous solution. In its aqueous solution. तो इसके आधार पर बेसिसिटी ऑफ एसिड में मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक. अब इसका एक एग्जांपल से तीनों को पहले क्लियर करते हैं. H3PO2, H3PO3, H3PO4, तीनों में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन. लेकिन ये मोनोबेसिक है, ये डाइबेसिक है, ये ट्राइबेसिक. मोनोबेसिक, डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक. अब मोनोबेसिक है मतलब P डबल बॉन्ड O H OH. अब देखिए, यही हाइड्रोजन सिर्फ डिस्प्लेसेबल, जो इस सेंट्रल एटम फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है वो डिस्प्लेस नहीं हो सकता. जहां OH है यही डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है. यहां देखिए OH, ये 2 डिस्प्लेसेबल है, इसलिए डाइबेसिक है. यहां तीनों हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल है, यानी फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, इससे जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन डिस्प्लेसेबल नहीं होगा. तो OH जहां पर है वही डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन. यहां पर तीनों डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो
तो मोनोबेसिक एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, डायबेसिक दो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एंड ट्राइबेसिक थ्री डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन. Am I clear about monobasic, diabasic and tribasic? अब थोड़ा सा इसका एग्जांपल हम लोग देख लें. अब मोनोबेसिक देखिए. मोनोबेसिक एसिड, monobasic acid, one displaceable hydrogen atom. एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है HCl, HI, HNO2, H2O3, HClO4, HCOOH, CH3COOH, ETC. अब देखिए यहां पर वन हाइड्रोजन सब वन है, दिख रहा है वन, लेकिन यहां पर देखिए CH3COH सिर्फ यही हाइड्रोजन डिस्प्लेस. यहां तो चार हाइड्रोजन है, लेकिन सिर्फ डिस्प्लेस होगा ये हाइड्रोजन. बी केसिंग हम लोग जानते हैं, तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, दैट इज मोनोबेसिक, यानी एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम. एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, दैट इज मोनोबेसिक. देखिए डायबेसिक एसिड, टू डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, दो डिस्प्लेसेबल. एक सारा एग्जांपल देखिए, H2SO3, H2SO4, H2CO3. अभी हमने देखा H3PO3, H2C2O4. हम देखते हैं H2C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड. ऑक्जेलिक एसिड 2H plus F plus C2O4 2 minus F. अब हमने देखा. अब ट्राइबेसिक में एक एग्जांपल है ट्राइबेसिक. डायबेसिक ये समझ गए, दो डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन, एंड ट्राइबेसिक थ्री डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन. ट्राइबेसिक थ्री डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन. ट्राइबेसिक थ्री डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन. For example, H3PO4, 3H plus aqueous plus PO4, 3 minus X. अब हम लोग एसिडिटी ऑफ बेस देखते हैं. Acidity of base.
acidity of bases based upon number of hydroxyl groups, यानी OH है कि नहीं उसके पास, कितना OH है, और OH डिस्प्लेसेबल है to give OH minus ion or ions in its aqueous solution. एक्वस सॉल्यूशन में यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं पहले मोनो एसिडिक बेसिस, मतलब वन डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयन, एक डिस्प्लेसेबल OH माइनस आयन है. फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH, NH4OH, RbOH, CSOH. One डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक डिस्प्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. इसमें डायबेसिक बेसिस, displaceable OH minus ions, two displaceable hydroxyl groups. For example, MgOH2, CaOH2, EaOH2, FeOH2, and triacidic basis. Displaceable OH minus ions. For example, AlOH3, FeOH3. हमने देखा एसिडिटी ऑफ बेसिस, बेस की एसिडिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करता है, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स टू गिव OH minus ion in its aqueous solution. Monoacidic, one displaceable hydroxyl group, NaOH, KOH, NH2OH, RbOH. Diabasic acid, two displaceable hydroxyl OH minus ion, and triacidic, three displaceable OH minus ion. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है pH स्केल, जिसको हम प्रीवियस क्लास में करेंगे. अभी तक जो हम पढ़े इस चैप्टर में, थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर का. इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने इंडिकेटर्स
नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। उसके बाद नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का इफेक्ट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन पर क्या है उसका टेबुलर फॉर्म हमने बताया। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बताया। उसके बाद हम लोगों ने ओल्ड कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस पढ़ा। ओल्ड कंसेप्ट में लिटमस पेपर, उसके टच, उसका ऑर्डर, इसके आधार पर कंसेप्ट पढ़ा हम लोगों ने। फिर मॉडर्न कंसेप्ट में हम लोगों ने आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा, जिसमें एसिड टू गिव H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, बेस टू गिव OH- आयन इन बेस गिव OH- इन एक्वा सॉल्यूशन। दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में प्रोटॉन डोनर को एसिड कहते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर को बेस कहते हैं। तीसरा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा लीविस कंसेप्ट, जिसमें लोन पेयर डोनर एसिड है और लोन पेयर एक्सेप्टर बेस है। हमने कुछ डिस्टिंग्विश भी किया स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, जिसमें H+ आयन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो, मैक्सिमम HCl, HNO3, H2SO4, ये इरिवर्सिबल हो, 100% आयनाइजेशन, ऑलमोस्ट 100% भी कह सकते हैं। उसी तरह से वीक एसिड है तो उसमें H+ पार्शियली आयनाइज्ड, पार्शियली आयनाइज्ड में H+ CH3COH, H3PO4, H2CO3 वीक एसिड है जो पार्शियली आयनाइज्ड होगा। फिर हम लोगों ने देखा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, OH- आयन प्रोड्यूस करे, और बेस पार्शियली OH- आयनाइज हो, NaOH, KOH ये सब कंप्लीटली आयनाइज होता है, और NH4H, CaOH, MgOH ये सब पार्शियली आयनाइज। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal oxides, with metal carbonate, with metal bicarbonate and with bases। आज हम लोगों ने पढ़ा रिएक्शन ऑफ बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल, certain metal, aluminum and zinc, reaction of base with non-metallic oxides, reaction of base with acid। इसके बाद हम लोगों ने अल्कलीज पढ़ा, वाटर सॉल्युबल बेसेस नोन एज अल्कलीज। वाटर सॉल्युबल बेस अल्कलीज है, इसका ढेर सारा एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। अब उसके बाद एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब कितना H उसमें है, हाइड्रोजन कितना है, कितना H+ को प्रोड्यूस कर सकता है। इसके आधार पर हमने उसको मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक में डिस्टिंग्विश किया। मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक। मोनोबेसिक HCl, डायबेसिक H2CO3, ट्राइबेसिक H3PO4। उसी तरह से एसिडिटी ऑफ बेसिस हमने कंप्यूट किया, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें कितना नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो एक्वा सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर सकता है। अब मोनोबेसिक 1 OH-, डायबेसिक 2 OH- और ट्राइबेसिक 3 OH- आयन प्रोड्यूस कर सकता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएच स्केल का, पीएच वैल्यू का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे।
कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे रिगार्डिंग पीएच एंड गुड बाय।